Hello everyone, online class 6, subject science, chapter 13, part 2. In first figure, north pole of one magnet is near the south pole of another. Thus, unlike poles are close to each other, hence they pull each other or attract each other. पहले आंकड़े में एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे के दक्षिण ध्रुव के पास है। इस प्रकार खंभे के विपरीत अन्य पालना के करीब है, इसलिए वह एक दूसरे को खींचते हैं या एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इन सेकंड फिगर, नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट इज नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द अदर मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ वन मैग्नेट इज नियर द साउथ पोल of the other magnet. In both the conditions, like poles are close to each other, hence they will move away from each other or push each other away. दूसरे आंकड़े में एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास है और एक चुंबक का दक्षिण ध्रुव दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास होता है। दोनों ही स्थितियों में जैसे डंडे एक दूसरे के करीब होते हैं, इसलिए वह कैच से दूर चले जाएंगे या कैच को अन्य से दूर धकेलेंगे। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक substances which are strongly attracted by a magnet are called magnetic substance. Example: iron, cobalt, nickel and alloy of carbon and iron. पदार्थ जो चुंबक द्वारा दृढ़ता से आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय कोबाल्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, निकल और कार्बन और लोहे के मिश्र धातु कहा जाता है। Substances which are not attracted by a magnet are called non-magnetic substance. Example: brass, paper, stone, gold, silver, etc. पदार्थ जो किसी चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें गैर चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है, जैसे पीतल, कागज, पत्थर, सोना, चांदी आदि। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, चुंबक के पोल। Be observed that the iron filings stuck mostly near the ends of the magnet. This so that the power of a magnet is the strongest at its ends. The two ends of the magnet which have a strong magnetic force are called poles of the magnet. हमने देखा है कि लोहे का बुरादा ज़्यादातर चुंबक के सिरों के पास अटक जाता है। इससे पता चलता है कि एक चुंबक की शक्ति उसके सिरों पर सबसे मजबूत होती है। चुंबक के दो छोर जिसके पास एक मजबूत चुंबकीय बल होता है चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। There are two poles in every magnet. These are by conventions called the North Pole and the South Poles. The poles of a magnet occur in pairs and cannot be separated even after cutting the magnet into pieces because each piece will have a north pole and a south pole. अब हर चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। यह सम्मेलन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव चुंबक के ध्रुव जोड़े में होते हैं। ऐसा चुंबक को टुकड़ों में काटने के बाद भी अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि कैच के टुकड़ों में एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होगा। जब दो तरह के ध्रुव एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वे निरस्त हो जाते हैं। When two like poles come in contact with each other, they get repelled. This is called repulsion. For example, when the north pole or both magnets come in contact with each other, they repel each other. When two unlike poles come in contact with each other, they attract each other. This is called attraction. For example, north pole and south pole attract each other. इस प्रतिकर्षण कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब दोनों चुंबक को उत्तरी ध्रुव एक दूसरे के संपर्क में आता है तो वह एक
दूसरे को पीछे हटा देते हैं। जबकि दो विपरीत ध्रुव अन्य के संपर्क में आते हैं तो वह अन्य को आकर्षित करते हैं, इसे आकर्षक कहते हैं। उदाहरण के लिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अन्य भागों को आकर्षित करते हैं। मैग्नेटिक कॉम्पास, चुंबकीय प्रकार। ए मैग्नेटिक कॉम्पास इज a small circular box like object with a glass cover on it. A magnetized needle which can rotate freely is fixed inside the box. एक चुंबकीय कंपास एक छोटा गोलाकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का आवरण होता है। एक चुंबकीय सुई जो स्वतंत्र रूप से घूम सकती है बॉक्स के अंदर तय की गई है। The compass has a circular dial with direction marked on it. Its needle indicates the north-south direction when it is at rest. The north pole of the magnetic needle is usually pointed in a different color for identification. When the compass is kept in the place where we wish to know the direction, the needle starts rotating till its pointed end reaches north marked on the compass. The compass thus indicates the direction in the place. This property of magnets is extremely useful in olden times. Travelers and sailors carried natural magnets which they suspend with a thread in order to locate directions. Even today, the magnetic compass is widely used to indicate directions. एक चुंबकीय कंपास एक छोटा गोलाकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का आवरण होता है। एक चुंबकीय सुई जो स्वतंत्र रूप से घूम सकती है और बॉक्स के अंदर तय की गई है। कंपास में एक गोलाकार डायल है जिस पर दिशाएं अंकित हैं। इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। जब हम यह आराम पर होता है पहचान के लिए चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव को आमतौर पर एक अलग रंग में इंगित किया जाता है। जब कंपास को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम दिशा जानना चाहते हैं तो सुई घूमने लगती है जब तक कि इसके नुकीले सिरे तक कंपास पर अंकित उत्तर नहीं पहुंच जाता। कंपास इस प्रकार इस जगह में दिशा को इंगित करता है। मैग्नेट की यह संपत्ति बेहद उपयोगी है। पुराने समय में यात्रियों और नाविकों ने प्राकृतिक मैग्नेट कंपास का उपयोग किया था जो दिशाओं को पता लगाने के लिए एक धागे के साथ निलंबित करते हैं। आज भी चुंबकीय करने के लिए व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। मैग्लेव ट्रेन। Many countries are using powerful electromagnets to develop high-speed trains called maglev train. Maglev is the short form of magnetic levitation. Maglev train float over a guideway using basic principles of magnetism to replace the old steel wheel and track. Train floating reduces friction and allow the train to run more efficiently. कई देश शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग कर रहे हैं जिन्हें उच्च गति वाली गाड़ियों को विकसित करने के लिए किया जाता है। मैग्लेव ट्रेन। मैग्लेव चुंबकीय उत्तोलन का संक्षिप्त रूप है। मैग्लेव ट्रेन पुराने स्टील व्हील और ट्रैक ट्रेनों को बदलने के लिए चुंबक के बुनियादी सिद्धांतों का उपयोग करते हुए एक गाइडवे पर तैरती है। फ्लोटिंग घर्षण को कम करता है और ट्रेनों को अधिक कुशलता से चलाने की अनुमति देता है। हैंडलिंग मैग्नेट्स। द फ्लोइंग प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हील यूजिंग मैग्नेट्स। मैग्नेट का उपयोग करते समय
निम्नलिखित सावधानियों को बरतनी चाहिए। मैग्नेट्स लूज देयर मैग्नेटिक properties of attraction or repulsions if they are heated, hammers dropped or kept in the east-west direction for long. This process of destroying the magnetic properties of magnet is called demagnetism. मैग्नेट आकर्षण या प्रतिकर्षण के अपने चुंबकीय गुणों को खो देते हैं। यदि वे गर्म होते हैं तो हथौड़े गिरा दिए जाते हैं या लंबे समय तक पूर्व पश्चिम दिशा में रखे जाते हैं। चुंबक के चुंबकीय गुणों को नष्ट करने की इस प्रक्रिया को डीमैग्नेटिज्म कहा जाता है। It has been seen that if wire magnets are left free for a long time, they slowly lose their magnetic properties by a process called self-demagnetization. यह देखा गया है कि यदि वह चुंबकों को लंबे समय तक खाली छोड़ दिया जाए तो वह धीरे धीरे खो जाते हैं और स्व-आवर्धन नामक एक प्रक्रिया द्वारा चुंबकीय गुण होते हैं। Hence, wire magnets should be stored in pairs in a wooden box separated by a pieces of wood such that their unlike poles face each other. This is done by placing soft iron pieces called magnetic creepers across both the ends. Sometimes a wooden pieces also serves the purposes. इसलिए वायर मैग्नेट की लकड़ी को बॉक्स में जोड़े में संग्रहित किया जाना चाहिए। लकड़ी के टुकड़े द्वारा अलग किया जाता है ताकि उनके विपरीत ध्रुवों एक दूसरे का सामना कर सकें। यह दोनों सिरों पर चुंबकीय रखवाले नामक नरम लोहे के टुकड़े रखकर किया जाता है। कभी कभी एक लकड़ी का टुकड़ा भी उपदेश पूर्ण करता है। Horseshoe magnets should be stored with pieces of iron across the poles. घोड़े की नाल के मैग्नेट को लोहे के टुकड़े के साथ ध्रुवों पर संग्रहित किया जाना चाहिए। Electronic devices should be kept away from strong magnets as they get damaged. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को मजबूत मैग्नेट से दूर रखा जाना चाहिए क्योंकि वे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। Uses of magnets. मैग्नेट का उपयोग। The magnetic compass, also called the mariner's compass, is used by sailors to find direction in the sea. समुद्र की दिशा खोजने के लिए नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबकीय कंपास जिसे मैरिनर्स कंपास भी कहा जाता है। टेलीविजन एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स हैव मैग्नेटिक स्ट्रिप्स इन देयर सर्किट्स। टेलीविज़न और कंप्यूटर मॉनिटर के सर्किट में चुंबकीय स्ट्रिप्स होते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रिप्स आर आल्सो प्रेजेंट इन एटीएम डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स विच स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंट्स। चुंबकीय स्ट्रिप्स में एटीएम डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी होते हैं जो खातों की जानकारी संग्रहित करते हैं। मैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर्स, स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन्स। मैग्नेट का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स, जनरेटर, स्पीकर और माइक्रोफोन में भी किया जाता है। इन फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एंड ऑडियो कैसेट्स डाटा इज रिकॉर्डेड ऑन अ थिन मैग्नेटिक कोटिंग। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और ऑडियो कैसेट में डेटा एक पतली चुंबकीय पर दर्ज किया जाता है परत पर। मैग्नेट्स आर यूज्ड इन मेकिंग चिल्ड्रंस टॉयज एंड अदर फैंसी आइटम्स लाइक स्टिकर्स। मैग्नेट का उपयोग बच्चों के खिलौने और अन्य फैंसी आइटम जैसे स्टिकर बनाने में भी किया जाता है। मैग्नेट्स आर यूज्ड इन सेपरेटिंग मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेट का उपयोग चुंबकीय सामग्री को गैर मैग्नेटिक कमेंट्स से अलग करने में भी किया जाता है। मैग्नेट्स आर यूज्ड इन मेडिकल
diagnosis, for example, MRI, magnetic resonance imaging machine, which give the image of the internal organs of the body, contain magnets. मैग्नेट का उपयोग चिकित्सीय निदान में भी किया जाता है। MRI कंपाइल्ड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन, जो शरीर के आंतरिक अंगों की छवि देती है और फोटो देती है, उनके लिए भी किया जाता है। थैंक यू।